मैं तो भटकता ही रहता अगर सलाह शॉट्स नहीं होता तो. So how you started just after internship? To be very honest, I was really clueless. I enrolled in Salah Shots mentorship, telling myself like I can do it. मेरे को अगर ये पता होता ना कि इतना कम पढ़ के भी आपका नीट पीजी अच्छा आ सकता है तो शायद मेरा. ऐसा बहुत होता है ना कि हम लास्ट 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. तो फॉर दैट थिंग तुमने क्या किया? एक स्ट्रक्चर मिला मेरे को मेंटोरशिप से कि ऐसा ऐसा चलना है. 4 सेशंस हुए थे. मैं कभी अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं था. मैंने एक्चुअली पहली बार कोई चीज प्लान के अकॉर्डिंग की है. If you had to describe role of Salah Shots in your journey, तो सलाह शॉट्स का जो सबसे बड़ा रोल था मेरी लाइफ में वो फोमो हटाना था. वन सब्जेक्ट वन सोर्स. मेरे मेंटोर मेरे लिए स्केड्यूल बनाते थे. मुझे फोटो आती थी बने बनाए स्केड्यूल की. मैंने कभी स्केड्यूल नहीं बनाया. from a NEET PG 2024 rank of 1,17,000 to 2,679 in NEET PG 2025. This is the journey of Dr. Avneet Singh, a post-intern from a government medical college. He faced setbacks along the way, not qualifying INICET November 2024 and securing 13,000 in INICET May 2025. Yet, he kept going and turned it all around to secure a top-ranking NEET PG. I am Dr. Sagar Pushp, and in this series, we bring you the stories of doctors who choose not to give up. Today, let's dive into Avneet's inspiring journey of persistence and comeback. So, hello, Dr. Avneet, how are you? I'm good. How are you? Okay, I'm also good. So, let's start with you, your rank, college, and a little bit about your journey so far. So, sir, I've done MBBS from GMC Rajnandgaon. It is a small town in Chhattisgarh. My hometown is Raipur, Chhattisgarh, the capital city, of course. It is 70 kilometers away from Raipur. So, general periphery college. I've been an average student since my MBBS. I haven't opened a book in internship. I haven't watched a single lecture video. So I was sure that I didn't want to do it the first attempt. I was like, I'll take a break. I'll prepare for an year. But I wasn't expecting 1,17,000. I've been an average student. So I thought maybe I should finish it around 70,000, 50,000, like an average student, but it was really a setback. So then I decided to give it a serious shot. So then prepared for around 7 to 8 months and then got the rank of 2679. Okay, that's great. So I just want to know ki when you got that 1,17,000. So at that point, what was your thought and how did you plan to move ahead? So I've been a topper since KGs. Like class 10 board, I secured 91% ICSC board. Class 12th, I secured 90%. I took a year drop for NEET UG. Yes, my state rank was 170. I got the government medical college at first round. So there were expectations from me. So it was really a setback. Like 1,17,000 was very devastating. So I decided that like this is not me. I never expected a rank of 1,17,000. So I decided to give it a shot then. It was very heartbreaking, to be very honest. Okay. So now take us back to your day of NEET PG result. Just a few days back, NEET PG result came. And this year you worked hard and you prepared well. So when you saw your rank, what was your reaction and what were your expectations? To be very honest, my recall score and my NEET PG score has a difference of 2 questions only. I had calculated 160 plus minus 5 and I got 159 correct. But as there was news all around like this year, there will be a drastic change, inflation. So I was expecting around 5 to 6,000 rank. But the moment I saw 2679, I checked my results 8 times. I even sent my brother my roll number, like you check once. I got a printout, like, is it really my rank? It wasn't expected. Yes. Okay. So, post internship, when we start our preparation and having a very bad rank in our internship. So,
these things very demotivate us, and it will create self doubt in us. So how you started after, just after internship, you started your preparation. So how did you plan that part that I'll do these things in coming next 1 year? So what was your main strategy? To be very honest, I was really clueless like how to proceed. Uh, in MBBS, I only studied for the professional exams, university exams, and my only goal was to pass them. I was really clueless. I wasn't sure about the sources I should follow. Like I've been studying from a source in my third and fourth year, but I wasn't sure. It was only to understand the concepts. I never took it like I have to clear NEET PG. I have to study it accordingly. No. So I was clueless. So then I enrolled in Salah Shots mentorship. Dr. Isha Gulhotra, my mentor, she was. Okay. So she really gave me a blueprint, like how to proceed. She helped me build an approach. Okay. So during our preparation, sometimes when something happens, like we gave some GT, or we were not able to study and continue our the same pattern which we were following. These things happen in between the NEET PG preparation. So some and we are having feeling very demotivated. What all those things you used to do to motivate yourself and maintain consistency? And so first telling myself like I can do it. And as instructed by my mentors, my friends, my seniors, like GT scores are never to be taken by heart. GT is a learning tool. And I never got depressed by my GT scores. Like I had got 50 corrects, 40 corrects, 12 percentile, 20 percentile in my GTs. But I never took them by heart. I reviewed it honestly and I always moved forward. Like my mentors were always there for any kind of need, like mental, academic, non-academic. My plus my parents. They always motivated me. Like they always said, like GTs is the place to do the mistakes. So if you are doing a mistake in GT, you are doing good. Okay. So, what role did community, peers, or mentorship play for you, especially when things felt overwhelming? I think they had the most important role. Like pharmacology for a subject is very volatile. I was really stuck in a loop. Like how many times should I revise? Will I able to be retained? So can I answer questions? तो ये याद ही नहीं रहने वाली चीज थी. एंड जो मेंटोर थी मेरी उन्होंने कहा नहीं रहेगी आप. स्टडी डे बिफोर टू एग्जाम और फिर उसको वॉमिट करके आ जाओ. मतलब सर इजी लगने लग गया था सब कुछ. फिर उसके बाद जब फार्माकोलॉजी है बहुत बड़ा बर्डन लगता था और फिर वो बहुत इजी लगने लग गया कि एक दो दिन पहले पढ़ेंगे जो याद रहा वो कर लेंगे. तो ऐसा ही था सर. तो ऐसा बहुत होता है ना कि हम लास्ट 15 डेज बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि अरे यार लास्ट 15 डेज अगर हमने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया या रिवाइज नहीं किया तो पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है. तो फॉर दैट थिंग तुमने क्या किया फिर? तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही जरूरी होते हैं. मैं शुरू से ऐसा रहा हूँ कि मैं एग्जाम के दिन भी सुबह अगर मैं देख के नहीं गया तो मेरे को ऐसा लगता है मैं ब्लैंक हूँ. तो सर ये इस पे मेरे शायद 4 सेशंस हुए थे कि मैं लास्ट 10 डेज के लिए क्या करूं. एक्चुअली सर फील ही यही हुआ कि मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ ना लास्ट 10 डेज में क्या पढ़ना है उसके लिए पढ़ रहा हूं. तो सर उसमें भी बहुत क्लियर था हमारा प्लान. मैंने एक्चुअली पहली बार कोई चीज प्लान के अकॉर्डिंग की है. मतलब ये जो था ना एक स्ट्रक्चर मिला मेरे को मेंटोरशिप से कि ऐसा ऐसा चलना है. मैं कभी अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं था. मैंने रैंडम ही आज तक जो भी स्कोर किया सब कुछ रैंडमली किया. तो ये ऑर्गेनाइज में कोई एक स्ट्रक्चर मिला इससे तो ये काफी हेल्प किया. मतलब मैंने कोई भी सेकंड थॉट नहीं लाया इस चीज पे. ट्रस्ट किया अपने मेंटोर को, अपने सीनियर्स को. उसके बाद अपनी भी इंस्टिंक्ट्स थी कि हाँ सही कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. जीटी स्कोर्स भी अच्छे हो रहे थे. टिप भी आया तो भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लास्ट 10 डेज पे ये भी मेरे को था कि एमसीक्यूज कम हो जाते हैं इंपॉर्टेंट. आपको रिटेन करना ज्यादा जरूरी है. तो सर थ्योरी पे ही फोकस किया. लास्ट 10 डेज का मटेरियल भी मेरे सामने बहुत क्लियर था. और सर इस पे एक ना पोस्टपोनमेंट ने भी हेल्प किया था मेरे को.
क्योंकि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता ना तो मेरे लास्ट 10 days ना बहुत ज्यादा मतलब नहीं थे वो सही, इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते जितने अभी हुए। वो जो मेरे तीसरे चौथे सेशंस थे वो पोस्टपोनमेंट के बाद के थे। मतलब एक बार आपने लास्ट 10 दिन 15 दिन जो है वो एग्जाम है उस हिसाब से पढ़ लिए थे, उसके बाद पोस्टपोनमेंट आता है, तो जनरली काफी डीमोटिवेटिंग होता है। और मेरे लिए थोड़ा सा उल्टा ही था ये, मतलब मेरे को फायदा था। मतलब सर ऑनेस्टली अगर मैंने जून में एग्जाम दिया होता तो शायद मेरे को ऐसा लगता है मैं 5-6 थाउजेंड सिक्योर करता। ये जो एक गैप आया ना 5-6 थाउजेंड, एक क्लस्टर से मैं ऊपर आया, वो एक क्लस्टर ही था सर, 140 to 150 करेक्ट। अब एनीवेयर बिटवीन यू आर 5,000 और 15,000। तो बहुत ही अच्छा रहा ये पोस्टपोनमेंट मेरे लिए। और इसमें बहुत ज्यादा रोल था मेरे मेंटोर का, क्योंकि सर जनरली जब ये पोस्टपोनमेंट आता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आपने तो कर लिया था, आप तो एग्जाम देने वाले थे, अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप एक्स्ट्रा कंटेंट के पीछे जाओ। और मैं भी था उनमें से। मेरे को सर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे कि नहीं, जो किया है वही करना। इवन सर जैसे मैं बीटीआर फॉलो करता था, बीटीआर में भी एक्स्ट्रा कंटेंट आया कि आपके पास टाइम है, लेकिन मेरे मेंटोर ने कहा कि उनको जितना देना था कि एग्जाम के लिए वो दे चुके हैं, तो उसी को करो। तो ये क्लैरिटी मिली, मैंने ट्रस्ट किया। बहुत ज्यादा फोमो भी होता है उस टाइम पे, क्योंकि लोग पढ़ते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स फिर एक्स्ट्रा कवर करने लग गए थे, जो हाई वेटेज सब्जेक्ट है उनके मेन वीडियोस पे जाने लगे थे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैंने सर शायद पीवाईक्यूज भी बार बार ही किए थे, मतलब मेरे को याद ही हो गए थे, पर मैं फिर भी कर रहा था उनको, बाकी ऑप्शंस को सोचना। मतलब सर जो किया था उसी को आगे कंटिन्यू किया। तो सर वही जो चीज थी जो 20 दिन में होती थी वो 10 दिन में होने लग गई। तो मेरे को एज सच लास्ट के 10 दिन में कुछ अलग सोचना नहीं पड़ा। बहुत क्लैरिटी मिली मेरे को इस मेंटोरशिप से। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इफ यू हैड टू डिस्क्राइब रोल ऑफ सलाह शॉट्स इन योर जर्नी, व्हाट स्टोरी और फीलिंग कम्स टू द माइंड? सर मैं तो भटकता ही रहता अगर सलाह शॉट्स नहीं होता तो। अच्छा कर लेता, कुछ ना कुछ कर लेता, आज तक किया ही है बिना इसके भी। मतलब शायद 10-12-15 हजार रैंक में सिक्योर कर लेता, क्योंकि सर फोमो होता है। फोमो बहुत ज्यादा, मतलब हर नीट पीजी एस्पिरेंट की लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है अगर उसके रैंक कम आ रहा है तो उसमें 50% पार्ट फोमो का है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कंटेंट कवर करने जाते हो। तो ये बहुत ज्यादा मिलने को, मतलब बहुत ज्यादा सीखा मैंने ये, क्योंकि जो मेंटोर्स थे वो ऑलरेडी अचीवर्स थे। उन्होंने जो रैंक लाई वो शायद मैंने अभी भी नहीं लाई है, पर मेरे से जितने रैंक वाले भी मेंटोर्स हैं तो सर सबकी एक कॉमन, जैसे सलाह शॉट्स में मेरे मेंटोर नहीं थे, आप लोग के बीच में जो सेशंस होते हैं गूगल मीट पे फ्री वेबिनार होता है वो मैंने अटेंड किए थे सारे। तो हर एक के में एक कॉमन स्टोरी थी कि आप फोमो हटाओ, कंटेंट के पीछे मत जाओ। जो एक्चुअली फैकल्टीज भी देते हैं तो फॉलो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि अपन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम थोड़ा और कवर कर ले। तो सलाह शॉट्स का जो सबसे बड़ा रोल था मेरी लाइफ में वो फोमो हटाना था। और मैं बहुत ज्यादा जाता हूँ इसके पीछे, मैं 4-4 बुक से पढ़ने लग जाता हूँ, मैं 4-4 सोर्सेज से पढ़ने लग जाता हूँ। तो वन सब्जेक्ट वन सोर्स ये भी मैंने सलाह शॉर्ट से सीखा। और सिर्फ अकेडमिक्स नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरा मन नहीं कर रहा है तो मेरे को मिलता था कि तू एमसीक्यू कर, मेरा वीडियोस का मन नहीं कर रहा तो टेस्ट एंड डिस्कशंस कर। मतलब अब वो कर चुके हैं वो। मुझे ऐसा होता है ना यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कोई फ्रेंड आपको बिठा के पढ़ा दे, आपको कंसेप्ट नहीं भी आते, आपने कभी साल भर नहीं पढ़ा, पर वो उसको उतना ईजी बना देता कि आप एग्जाम में लिख के आ जाते हो। तो वो रोल था सलाह शॉर्ट्स का, बेसिकली कंपेनियन था वो मेंटोर से ज्यादा मेरे लिए। अच्छा, तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा, जैसे तुमने बोला कि बीच में अगर पोस्टपोनमेंट नहीं होता तो मैं स्टक हो जाता। तो जैसे कि वो होता है ना, जीटी स्कोर प्लेटू हो जाता है या जीटी स्कोर कंसिस्टेंट रहता है, तो उसके लिए तुमने सडनली ऐसा क्या चीज लाया कि थोड़ा पुश किया और रैंक तुम्हारा स्कोर ज्यादा अच्छे आने लग गए? जीटी के लिए सर, जीटी के लिए ना मेरे को सिंप्लीफाई की गई थी जीटी मेरे सामने, कि आपके फैक्चुअल एरर्स हैं, रिकॉल एरर्स हैं, या आपके टॉपिक से नए आ रहे हैं जीटी में। तो मेरे को सबसे पहले उसको रिव्यू करना भी सिखाया गया था। सर टू बी ऑनेस्ट मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं 200 क्वेश्चन सॉल्व करूँ और पूरे 200 रिव्यू भी करूँ। तो मेरे को जीटी को रिव्यू करना भी सलाह शॉर्ट मेरे मेंटोर ने सिखाया था कि तुम ऐसे रिव्यू करो जीटी। तो सर रिव्यू करने से ही सबसे बड़ा फर्क पड़ा। एनालिसिस बहुत जरूरी था कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स में लैग करूं। जैसे एनाटॉमी मेरा कॉन्स्टेंटली वीकेस्ट सब्जेक्ट आता है, इवन लास्ट जीटी तक आया, पर सर वो ऐसा हो गया था कि 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन करेक्ट थे आखिरी जीटी में, उसके पहले तक 1-2 होते थे। तो वीकेस्ट भी उतना वीक नहीं था, बाकी के कंपैरिजन में वीक था, पर बेटर ही हुई चीजें। डिप भी आए थे 120 करेक्ट के बाद भी मैंने 90 करेक्ट देखे।
तो उस पे भी मेरा मेंटोर, मतलब जैसे होता है ना, आपके मेंटोर हैं, आपकी प्रोग्रेस से खुश हो रहे हैं, तो आपने जैसे सडनली आपके में एक डिप आया, तो हो सकता है वो आपको बोल दे कि नहीं तुम मेहनत करो, नहीं कर रहे हो, तो वो उनके लिए काफी नॉर्मल था। ऐसा लग रहा था उनके साथ हो चुका, उनको सब पता है। तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा सर, 90 भी आया तो मैं 150 भी गया हूँ, मैं 125 भी गया हूँ। इवन नीट के लास्ट 1 डेढ़ महीने में भी जो मैंने जीटीज दी है, वो 130 से 150 करेक्ट पे चल रही थी। पर बहुत क्लैरिटी थी सर मेरे अंदर की जीटी स्कोर से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जीटीज मेरे को सिर्फ 3 घंटे बैठ के एक पेपर सॉल्व करना सिखा रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे को अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस था। और आखिरी जो मॉक्स बनती हैं जीटी में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट से होती है, बाकी तो फिर भी तरह से होती है। तो मॉक्स देके भी काफी कॉन्फिडेंस आ रहा था। भले मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म की दी, किसी में 125, किसी में 130, किसी में 150 भी स्कोर किया, पर मैं कॉन्फिडेंस था कि मेरा कंटेंट इनफ है। जीटी को सर ऑनेस्टली लोग बोलते हैं कि एवेलुएट मत करो, लर्निंग टूल है। मैंने सच में उसको लर्निंग टूल लिया। अभी भी मेरे को जीटी मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने 50 करेक्ट्स भी देखे हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब कि बहुत लोग ऐसे जीटी के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं। हम मतलब एक होता है कि जीटी का एनालिसिस करना इस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम जो गलती कर रहे हैं उसको एनालाइज नहीं वो करेंगे आता फिर। ही नहीं है ना लोगों को सर, वो हम्म, आता भी नहीं है। मेरे को खुद को नहीं आता था। तो मेरे जैसे और जरूर होंगे, मेरे से बेटर भी होंगे जिनको आता है। पर मेरे को ऐसा लगता है जो कॉमन है, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो बुक वर्म कभी नहीं रहे, जिन्होंने हंसते खेलते एमबीबीएस निकाली है अपनी, सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के 15 दिन पहले पढ़ रहे हैं, तो मैं उन बच्चों में से एक हूँ हमेशा से। तो मेरे को तो नहीं आता था जीटी रिव्यू करना। मतलब सर मेरे से तो वो सब भी नहीं होता कि मैं चीजें नोटेट करूँ, मैं कोई कॉपी बनाऊं, उसके लिए मैं डायग्राम्स बनाऊं, मैं फ्लो चार्ट बनाऊं, बिना उसके भी मैं कर लिया। इवन मेरे को सर शेड्यूल बनाने में, ये सब में भी मैं बहुत वीक हूँ। मेरे मेंटोर मेरे लिए शेड्यूल बनाते थे, मेरे को फोटो आती थी बने बनाए शेड्यूल की, मैंने कभी शेड्यूल नहीं बनाया। तो सर वो जो मेंटोर होते हैं ना, जैसे सर मेंटोर नहीं, कंपेनियन ही हुए वो, आपकी हर चीजें समझते हैं, फेयर हो अनफेयर हो। कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये ऐसे कौन सा सब्जेक्ट और टॉपिक था जो तुमको सबसे टफ लगा, जिसको टैकल करने में बहुत दिक्कत हुई, और फाइनली तुमने कैसे टैकल किया? सर सबसे ज्यादा टैकल करने में मेरे ख्याल से हर एक एस्पिरेंट को जो प्रॉब्लम होती होगी एनाटॉमी। तो सर उसके लिए तो मेरे को एक मिनिमल सोर्स रिकमेंड कर दिया गया कि इतना कर ले, तेरे 70% क्वेश्चंस बन जाएंगे। बहुत स्ट्रगल किया था उस पर, पर वो हो गई थी। लेकिन सर इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो मेडिसिन था वैसा एक। तो मेडिसिन के लिए मेरे को काफी डे वन से क्लियर किया गया था कि उसका कंटेंट तो एंडलेस है, कितने भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ वो रिटेन होगा ही नहीं। तो उसके लिए भी एक मेरे को कंसाइज सोर्स रिकमेंड किया गया। बीटीआर ही था ऑफ कोर्स। तो सर बीटीआर ने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं, बीटीआर की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है बीटीआर का। मेडिसिन मैंने पूरा बीटीआर से किया। बट हाँ, मेरे को पैथ फार्मा माइक्रो ये स्ट्रॉन्ग करने बिल्कुल बोला गया था, और ये बोला गया था कि ये बेस है मेडिसिन का, 70% क्वेश्चन बनते इससे और बने भी। तो मेडिसिन तो मैंने ऐसे ही किया है, और इसमें मेरे को बहुत बड़ा रोल था मेरे मेंटोर का, मेरे को मेडिसिन स्ट्रॉन्ग करवाने में। मेडिसिन मेरे को एमडी मेडिसिन ही करना है आगे भी, मैं श्योर हूँ इस पे, मैं जनरल मेडिसिन ही लूंगा। पर नीट पीजी के लिए मेडिसिन को पढ़ना था, वो सिर्फ कंटेंट बेस्ड तो नहीं हो सकता। और मेडिसिन में चोक होता है इंसान, आप चोक करोगे ही करोगे, क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट कंटेंट है। और फिर बहुत ज्यादा खींचता है अपनी तरफ कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। वो बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि आप इतना लिमिटेड सोर्स पढ़ रहे हो इतने बड़े सब्जेक्ट के लिए, और आप उसमें स्कोर भी आप अच्छा कर रहे हो। मेडिसिन के साथ अगर अलाइड अगर देखें अपन, तो 52 क्वेश्चन थे नीट पीजी में, और सब मेरे 45 तो बने मेरे को लगता है, 40 से 45। और सर मतलब अगर कंटेंट 100% है उसका, तो शायद मैंने 20% कवर किया, किया कोर इंपॉर्टेंट। पर सर अगर मैं नहीं लेता ये एडवाइस, या मैं नहीं मानता इस एडवाइस, तो मैं उस 100 के पीछे जाता, और जो बाकी हाई वेटेड सब्जेक्ट हैं वो काफी सफर करते हैं इसके कॉस्ट पे। तो सर उसको भी एक इक्वल सब्जेक्ट 19 में मानना चाहिए, और वैसा करना चाहिए। तो ये भी मैंने सीखा ही है, मैं था नहीं ऐसा। तो अगर कोई एक मैसेज देना हो जो अभी प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, या जो तुम्हारे जूनियर्स प्रिपेयर करना चालू कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज ऐसा हो, ये सोचते हुए कि ये चीज अगर तुमको बहुत पहले बताई गई होती तो तुमको और ज्यादा फायदा होता, अगर इस पॉइंट को भी हम कवर करें तो? सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि कंटेंट के पीछे मत जाओ, लिमिटेड पढ़ो, बार बार पढ़ो। रिवीजन बहुत जरूरी है। मेरे को अगर ये पता होता ना कि इतना कम पढ़ के भी आपका नीट पीजी अच्छा आ सकता है, तो शायद मेरा
इंटर्नशिप अटेम्प्ट भी अच्छा होता, क्योंकि उसमें भी पोस्टपोनमेंट थी। 3-4 महीने बहुत अच्छे थे, मैं 2000 पे लैंड नहीं करता, मैं 10-12,000 पे लैंड करता। लेकिन आज कोई भी एस्पिरेंट है जो 12,000 15,000 में, क्या वो री अटेम्प्ट लेगा? तो बहुत कम निकलेंगे, ऐसे 10% निकलेंगे। तो आज मेरा पीजी फर्स्ट ईयर हो गया होता। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि मतलब चीजें मेरे सामने थी, मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा था उस पर। मेरे को ऐसा लगता था बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत ऐसा है। पर बहुत नहीं, बार बार पढ़ना होता है। सबसे जरूरी बात यह है, कंटेंट तो बहुत ज्यादा ही है। आप अपना कोर फिक्स करो, आप पीवाईक्यूज पीवाईटीज असेस करो, आप इंपॉर्टेंट्स पढ़ो। जो सब सही करेंगे वो सही करना है, तो रैंक अच्छी आएगी। आप एक रेयर क्वेश्चन सही कर रहे हो और कॉमन क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आप 1 लाख पे ही आओगे, इससे ज्यादा नहीं आओगे। तो सीखा तो मैंने यही इससे कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है, और सब स्ट्रक्चर के बिना नीट पीजी निकालना पॉसिबल नहीं है। मैं जैसे आज तक रैंडमली पढ़ता था, मेरे मेथड्स अच्छे नहीं है इसके लिए। मतलब जो मैंने रैंक लाई है उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। 10-15 हजार मैं शायद ले आता अपने तरीकों से भी, तो बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं 10-15 हजार पे होता, तो आज मैं अपने होम टाउन में अपने कॉलेज में पढ़ूंगा, मेरे घर वालों के साथ रहते हुए पढ़ूंगा। सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। मेरे को बाहर भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेरे को दिल्ली में डीएनबी कॉर्पोरेट्स अच्छे मिल जाएंगे, मैं जानता हूँ मिल जाएगा। तो मेरे को यही चाहिए था। अब मेरे को सर वो मेरी रैंक 100 भी होती तो भी ये करना था मैंने, और इस रैंक पे भी यही करूंगा। तो पहले तो अपना गोल भी पता होना चाहिए। पर ठीक है, कम के लिए एम कभी नहीं करना चाहिए, एम तो अच्छे के लिए करो। और मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आप एवरेज एवरेज हो। जो एमबीबीएस कर लिया है वो सारे बराबर ही हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। सबके पास सेम कंटेंट है, सबको सेम क्वेश्चंस आने हैं, पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। किसी एक चीज पे ट्रस्ट करो, अपने मेथड पे करो, आपके मेंटोर बता रहे हैं उस पे करो, सीनियर्स पे करो, फैकल्टीज पे करो, और सब कुछ मत करो। अपना एक टारगेट लेके चलो कि मेरे को इतना करना है, मेरे को लगता है कि इतना सफिशिएंट है मेरे को जो चाहिए उसके लिए, उसको मास्टर करना जरूरी। ओके, फिर ये सलाह शॉट्स के बारे में तुमको पता कैसे चला? पता शॉर्ट्स के बारे में मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला। इंस्टाग्राम से पता चला, फिर मैंने सेशन लिया। फिर मैंने शायद 1 मंथ या 3 मंथ्स की ली थी, पर फिर मेरे को इतना कॉन्फिडेंट था। मैं ऐसा था कि मैं बहुत कम सेशंस लेता था। इवन सलाह शॉट भी मेरे को बोलते थे कि आपका 1 मंथ का एक सेशन पेंडिंग है। पर वो क्लैरिटी मेरे को 2 महीने बाद आने लग गई थी, क्योंकि मेरा एक सेशन में फिर उसके बाद हो जाता था कि मेरा आगे का 1.5 महीने का ना चीजें सॉर्ट हो जाती थी। तो मैं लेता भी नहीं था। लेकिन मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो अप आ जाती कि आपके सेशंस बचे। तो 1-2 बार तो मैंने 1 आवर के सेशन 15-15 मिनट भी लिए हैं, सिर्फ अपनी नॉर्मल नॉन अकेडमिक प्रॉब्लम डिस्कस की है कि मैं आज मैं 8 घंटे पढ़ा, आज मैं 6 घंटे पढ़ा। तो उसको भी बहुत अच्छे से लिया जाता था मेरे मेंटोर के। तो मेरे को उस पर भी सजेशंस एडवाइस मिलती थी। मतलब वो इन्फॉर्मेशन इतनी रेलेवेंट भी नहीं थी, इतनी सिग्निफिकेंट भी नहीं थी, तो मेरे को मिलती थी उसके लिए एडवाइस। तो काफी अच्छा रहा ये, मेरी जर्नी अच्छी रही। और सलाह शॉर्ट्स ही शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है मेरे रैंक के बाद, क्योंकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। शायद मेरे घर वालों के बाद मैंने फर्स्ट मैसेज सलाह शॉर्ट्स के ग्रुप में किया था कि मेरी ये रैंक आई है। सही, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग का मेन यही गोल था सलाह शॉट्स बनाने का, कि अपन जो बहुत ऐसे पेरीफेरी या बहुत ऐसे जगह रहते हैं जहां हम बस एक हेल्प चाहिए रहती, बोलने बस एक सेंटेंस यूज करने के लिए कोई चाहिए रहता है, यार तू कर, मैं हूँ, या तेरी प्रॉब्लम्स के लिए मैं खड़ा हूं। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सबको मिल जाते हैं, उस पे तो वही फैकल्टीज हैं जिन्होंने सबको सेम पढ़ाना है। उनके यूट्यूब सेशन सब होते हैं, वो भी बताते हैं सेम, पर वो आपके लिए हर समय नहीं रहेंगे। एक आप उनके वीडियोस देख रहे हो, एक आपको कोई लाइव बता रहा है, आपके साथ गूगल मीट पे हो रहा है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी चेक हो रही है बराबर कि आप क्या कर रहे हो। आप ग्रुप पे डालो, आप वीडियो कॉल नहीं हो सकती तो मैं मैसेज में कर लूंगी। तो वो हर पॉइंट पे था मेरा मेंटोर मेरे लिए। ओके, तो ये ये बहुत काफी अच्छी बात अच्छा था। तो एक दोस्त साथ में पढ़ रहा है ऐसा लगता था, पर वो निकाल लिया है। मतलब एक पीजी फर्स्ट ईयर आपका दोस्त आपको पढ़ा रहा है, हालांकि उनके पास और टाइम होता नहीं है आपको हाँ, पढ़ाने का, पर उनसे ज्यादा अच्छा को कोई नहीं पढ़ा सकता। ये बात तो है। कंटेंट तो सब पढ़ाते हैं सर, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, कितना पढ़ना। और मतलब सेटबैक्स भी मिल रहे हैं तो नॉर्मल है या नहीं, ये बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग होते हैं सेटबैक्स, अपने लिए यही नहीं लगता है। पॉइंट 1-2 पॉइंट पे फील हुआ था कि 1-1.5 महीने मिल जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, 1-1.5 महीने मिल जाते तो मैं ये कर लेता। और फिर पोस्टपोनमेंट भी आई, बहुत अच्छा ही रहा। हाँ, वही जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और रही बात इस चीज की कि हम मतलब
कोई अगर ऐसे बताता है तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अपन को एक वो रहता है यार और कि वो अचीव कर चुका है तो आप उसमें डेफिनेटली। ट्रस्ट इजीली कर पाते हो। और कोई अपना इतना टाइम दे रहा है तो वो जेन्युइनली वो चाहता भी है कि वो किसी को मेंटोर कर रहा है तो निकले। तो एक उसकी भी एक्सपेक्टेशंस होती है, जैसे मेरे को फील होने लग गया था कि मेरे मेंटोर को है मेरे से। और मैं जो उनको बताता था मैं सच बताया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जब मेरे स्कोर्स 120 से 80 भी गए तो मैंने बताया, मैं बहुत ऑनेस्ट रहा। और मेरे को उससे कोई डीमोटिवेशन नहीं मिली, मैं मोटिवेट ही हुआ। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ा मेरे स्कोर्स कम हुए, क्योंकि वो मेरी प्रिपरेशन तो मॉनिटर कर ही रहे थे शुरू से। एक बैड जीटी से कुछ नहीं बदलता। आपने उसको नहीं दी कंसिडर करो, मैं तो ऐसे बहुत सारी कंसिडर किया कि मैंने नहीं दी थी। ओके, तो तुम्हारे अगर लास्ट लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर तुमको अपने मेंटोर के लिए, जो तुम्हारे डॉक्टर अनीशा थी मेंटोर, तो उनके लिए तुमको कुछ पर्सनल मैसेज देना हो। तो उनको तो मैं यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जो है आपके कारण ही हुआ है ये। मतलब सब कुछ आपने बताया, सोर्सेस, स्केड्यूल, हर स्केड्यूल मेरा डॉक्टर अनीशा गल्होत्रा ने बनाया था। मेरी हर रिवीजन साइकिल डेट वाइज, मैं जीटी कब दे रहा हूँ, मैं कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मैं कौन से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, इवन उन्होंने बताया। मेरे को कहाँ से करना है ये भी बताया उन्होंने। मतलब कस्टम मॉड्यूल नहीं, डेडिकेटेड पीवाईक्यू से करो। मतलब हर चीज पे उनके पास में क्लैरिटी होती थी। ये नहीं है मतलब ज्यादातर नहीं तो डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ वो गलत नहीं होते। पर ये क्लियर थी काफी, बहुत ही क्लियर थी। और प्लस उनकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग थी। एम्स दिल्ली की सीट छोड़ के वापस नीट पीजी के लिए बैठ के रेडियोलॉजी अगर आपको चाहिए और आपने ली, मैं तो नहीं कर सकता ये। 109 रैंक थी उनकी, तो वो हमेशा रही। जब उन्होंने शायद लास्ट में मेरे को ये भी बोल दिया था कि मैं गिल्ट में हूँ कि मैं टाइम नहीं दे पाती, तो अगर तुमको बहुत ज्यादा नीड है तो ही हम कंटिन्यू करते, नहीं तो अब तो मेरा काम हो गया है। हालांकि मैंने उनसे उसके बाद एक ही सेशन लिया, मैं भी समझा उनकी बात। पर वो थी उस टाइम पे भी, तो उन्होंने शायद अपनी नाइट ड्यूटी पे भी मेरे साथ स्टेयर्स पे बैठ के मेरे को सेशन दिया है। तो इतना कोई आपके लिए कर रहा है तो आपके रिजल्ट आने तो बनते हैं। डेफिनेटली। और तो हम बहुत ही यही अच्छा हमारा, एक्सपीरियंस रहा था डॉक्टर निशा के साथ मेरा। तो यही हमारा मेन है ना यार, कि हम जिस पाथवे से गुजरे हैं, और अगर जैसे तुमने अभी क्रैक किया और फिर तुमको किसी की जरूरत रहती है तो तुम भी वैसी ही हेल्प करोगे उसकी, क्योंकि तुम्हारी फॉर हेल्प भी श्योर, डेफिनेटली वैसी हुई है। तो फॉर फिर श्योर। डेफिनेटली और फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये कोई एक्सपेंसिव भी नहीं था, बहुत ही अफोर्डेबल सॉल्यूशन है। तो जेन्युइनली इससे समझ आता है कि ये हेल्प के लिए ही बना है। और डेफिनेटली। सर आपके भी मैं काफी आर्टिकल्स देखा हूँ, यूपीएससी सीएमएस के रिगार्डिंग, काफी सारी चीजों के रिगार्डिंग। तो मेरे फ्रेंड को मैंने आपके बारे में जो भी बताया था उसने भी काफी फॉलो किया। हालांकि उसने मेंटोरशिप नहीं ली थी, पर हाँ उसने फ्री सेशंस भी बहुत सारे देखे थे। तो डेफिनेटली हमने ये, मैं मेरे समय ऐसा कोई नहीं था, तो हमने इस सब कोऑर्डिनेट करके इसीलिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। और इसीलिए आगे भी हम नीट पीजी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि हमने देखा कि यार बहुत मैंने ऐसे किया मार्केट में एनरोल। बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग हैं जो इतना सारे पैसे लेके और सही गाइडेंस नहीं दे रहे। तो हमारा मेन यही है कि जो जो भी तुमको चूज करना है, हम उसके लिए हेल्प करेंगे कि तुमको क्लैरिटी मिले। हम कोई ऐसे काउंसलर वाला काम नहीं कर रहे। तुम्हारे डाउट्स को, जैसे हमने एग्जाम के लिए भी कोई कोचिंग का काम नहीं किया, तुम्हारे डाउट्स को बस क्लियर किया है। यहाँ भी हम ट्राई करेंगे कि तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करें, जिससे तुम खुद अपने राइट चॉइस चूज कर पाओ। तुम्हारा डिसीजन मेकिंग पावर हम छीन नहीं रहे, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग पावर में हम तुमको हेल्प कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे साथ भी हुआ कि तुमने जो डिसीजन लिए उसमें हेल्प मिला। और नीट यूजी और नीट पीजी का जो ब्रिज है ना, वो आप लोगों ने फिल किया है उसके बीच का गैप। क्योंकि नीट यूजी में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके पास बहुत लोग होते हैं कि मेरी ये हेल्प कर दो, वो कर दो। क्योंकि पढ़ाने वाले तो रहते ही हैं, फैकल्टीज तो इधर भी हैं वहां भी हैं। पर वहां बहुत इजी एक्सेस होता था उनका, यहाँ नहीं होता। क्योंकि वो भी बहुत बिजी होते हैं और एक क्लास में इतने बच्चे होते हैं, वो लाइव पढ़ाते हैं, लाइव में कितने डाउट्स पूछ लोगे। नॉन अकेडमिक डाउट्स पूछोगे तो वो उस समय एंटरटेन नहीं करेंगे, वो एक सेशन रखेंगे। तो ये चाहिए, वे बहुत जरूरी है पीजी के लिए। कंपैरेटिवली काफी टफ होता है नीट पीजी, नीट यूजी के पे। तो ये जो गैप था ये बहुत अच्छा फिल किया है आपके प्लेटफॉर्म ने, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक हर यू। हर उस पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, एसएस पे भी होना चाहिए, नीट पीजी डेफिनेटली। सब पे होनी डेफिनेटली चाहिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि हर पार्ट में जाके, बस हमारा मेन गोल है कि कोई भी मेडिको अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम मेडिकोज ही हैं जो लेफ्ट आउट फील करते हैं हमेशा। तो डेफिनेटली फैकल्टीज बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, फैकल्टीज और हमारे बीच बहुत गैप होता है। और जो हमारे से 1-2 साल 3 साल पहले ही अचीव किए हैं वही अगर हमको मेंटोर करें, क्योंकि वो भी आज उसी जगह पे हैं।
डेफिनेटली। जो पीजीज जिनके खत्म भी हो गए हैं और जो हमारे फैकल्टीज हैं, एक्सपीरियंस उनको ज्यादा है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं इतने बच्चों को। पर ये जो है ये हमको एकदम रियलिटी से एक्सपोज कर देते हैं और हमारी रियलिटी भी एक्सेप्ट करते हैं। सिर्फ मोटिवेशनल टॉक्स ये नहीं होती, थोड़ी रियलिटी भी होती है। चलो, अच्छा लगा बात करके। तो सलाह शॉर्ट्स की तरफ से तुमको कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, और Thank फिर हमारे तरफ से वेल विश है कि तुम अपने करियर में बहुत आगे जाओ, तुम मेडिसिन लो आगे, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करो। सलाह शॉर्ट्स की फैमिली का तुम मेंबर हो, तो सलाह शॉर्ट्स की जरूरत जब भी तुम्हें पड़ेगी डेफिनेटली हम तुम्हारे लिए खड़े हैं। और अब अगर तुम मेंटोर की तरह ज्वाइन करते हो सलाह शॉर्ट्स के लिए, तो फिर सलाह शॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसे तुमको हेल्प मिली, डेफिनेटली तुम भी वैसे मोटिवेट होकर लोगों को हेल्प करोगे। तो इन द लास्ट डेफिनेटली हमारे तरफ से बहुत वेल विशेस तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सर।